जो आपके बिगड़े कुलप्रीत साहब हैं, विकल्प बता रहे थे, और वो हर चैलेंज का सामना करके, मुश्किलों का सामना करके, खाने का स्टाइल, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक चीज अलग होती है। उसके बात करने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, खाना खाने का स्टाइल, एवरीथिंग इज डिफरेंट. Today in our country, when we are heading for India becoming one of the most developed, we'll always wear even a civil dress in a proper manner. Correct? Yes, sir. An NCC cadet will talk with his or head. This is what we aim at accomplishing when we are teaching. When I talk about camaraderie, your fellow soldier is your brother in arms, and treat him or her like that. It is for the nation, and for that your integrity, honesty and loyalty to the country has to be very high. I will explain integrity to you. I was explaining this to cadets of Chandigarh group day before yesterday. What do you mean by integrity? लेकिन उसको खुद को पड़ता. Yeah, you want to say something, बेटा? सर वही कि जो मतलब मिलने आया था वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते. So my name is Cadet Amit. Good. So जो भी उसको मिलने आया था चाणक्य को, वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा था तो वो पढ़ सकता था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि वो सरकारी काम था. अगर कोई बाहर का बंदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेगा तो लीक कर सकता है. Good. Siddharth. So this is the highest level of integrity which we demand from you. As responsible citizens of the country, you should have the highest integrity. Now I will talk about NCC. I said the credit goes to the people sitting in front and your ANOs and CTOs. When none of you were born, आप में से कोई भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था when I was an NCC cadet, and I was sitting like you in front, like this. I went for the Republic Day camp, tried very hard in the bed. I walked on the Rajpath, then called Rajpath, now called कर्तव्य. So मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी कमांड करूंगा. So when I got commissioned in the Indian Army, Rajpath, as a captain, as a contingent commander. पर हमें टाइम नहीं मिला. बट आप बार-बार तो कमांड कर नहीं सकते. When I became Lieutenant Colonel in 2006, I was made officer trained there. So I took this up as challenge, and that time our contingent came first. It got the best marching contingent trophy. Why I am telling you all this? कि कभी निराश नहीं होना है. आपको असफलता कैडेट वही है जो हौसले बुलंद रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए. हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय. जय शिवा
ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, 24 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ MS ਮੋਖਾ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ? ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਨੂਅਲ ਟ੍रेनिंग कैंप लगाया हुआ है, TS लगाया है। अपना नाम दस के आज की प्रोग्राम से? जय हिंद टू ऑल, माय नेम इज़ कैडेट कैप्टन अर्शदीप सिंह। आज हमारे यहाँ ADG सर की विज़िट थी, उन्होंने हमें लेक्चर दिया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमें SSB के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। थैंक्स टू ADG सर। ये अपना नाम दसो। मेरा नाम कैडेट गुरबीर सिंह फ्रॉम 24 पंजाब बटालियन NCC। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ NCC ਕੈਡੇਟ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। हाँ जी, क्या नाम आपका? तो आज जो हुआ था क्या कहना चाहोगे आप? सर, आई एम कैडेट सौरभ पठानिया फ्रॉम 2PB एयर स्क्वाड्रन NCC अमृतसर। सर, आज बहुत अच्छा इवेंट हुआ है जिसमें एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल हैज़ कम टू आवर प्लेस एंड ही हैज़ मेड अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन in which he has given a lot of advices from his experience of service. He has served in 12 Maratha Light Infantry, and the major principles and the lessons that he has given to us is, number one is integrity, sir. Integrity, it is very essential for not only for defense aspirants but also for the life, sir. Apart from that, he has also taught us a lot of other things. He has given us different definitions of leader. He said that leader is not only in defense but also in other sectors. And sir, any other questions you would like to ask? तो आपको क्या एयरफोर्स में जाना चाहोगे, उसके लिए क्या नोटिस दिए? सर, एयर विंग के लिए, सर एयरफोर्स के लिए उन्होंने नॉट ओनली फॉर एयरफोर्स सर, फॉर एनी फोर्सेस इन द डिफेंस सर मेजर थिंग इज़ द पर्सनैलिटी and that comes with participation and having a good character, and that comes with time and all those things which is required for being a good human. Sir, if one person is having all those characteristics, then he will get through and become any officer in any field. So that is what he has taught to us. तो आपको कैसा लगा इवेंट? Sir, it was a very good session sir, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें सर। जी, मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ UT इस डायरेक्टरेट को हेड कर रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था, जो हम अपने दौरे पे जाते हैं, अलग अलग डायरेक्टरेट्स में अलग अलग ग्रुप्स में विज़िट करते हैं, उसके तहत आज ये विज़िट था अमृतसर ग्रुप के बच्चों को मिलने का, NCC कैडेट्स को मिलने का, और ख़ास करके उनको एक मोटिवेशनल टॉक देने का, उनसे बातचीत करने का, उनके व्यूज़ जानने का और उनको आगे के रास्ते के बारे में बताने के बारे में था। सर, ये जो बच्चे करते हैं NCC, उनको ABC सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है? देखो, उसका बहुत बेनिफिट है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्ट करता हूं, अगर ऑफिसर लेवल पे कमीशन पाना है उनको, फ़ौज में ऑफिसर बनना है, तो C सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये है कि जिन बच्चों ने C सर्टिफिकेट NCC का पाया हुआ है, अगर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी CDS का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो 32 सीट्स NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं फॉर द फाइनल मेरिट। उसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन पाने के लिए जो NCC C सर्टिफिकेट के बच्चे हैं, इनको रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट SSB इंटरव्यू इनके लिए लागू है, इनको रिटन एग्ज़ाम देने की बाकी बच्चों की तरह ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अग्निवीर जो हमारे आप सिलेक्ट हो रहे हैं, सिपाही रैंक में जो भर्ती होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा है A, B, C तीनों सर्टिफिकेट का। A सर्टिफिकेट जिन्होंने प्राप्त कर रखा है उनको 10 नंबर एडिशनल मिलते हैं, जिन्होंने B सर्टिफिकेट किया हुआ उनको भी 15 नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार C सर्टिफिकेट, और अगर RDC कैंप भी साथ में कर रखा है तो 25 नंबर और मिलते हैं। तो अगर 25 नंबर आपको फाइनल मेरिट के लिए मिल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक निश्चित हो जाता है रिटर्न एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि आपको ये एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि आप NCC कैडेट रहे हैं। प्रधानमंत्री स्कीम के कोई बॉर्डर एरिया में एक्सटेंशन स्कीम वगैरह कोई? एक्सटेंशन स्कीम प्रधानमंत्री जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर किया है, अभी उसके तहत ये 3 फेज़ में होना है, जिसमें तकरीबन अगले 10 सालों में तकरीबन 10 लाख और NCC कैडेट्स की जो है बढ़ोतरी की जाएगी।
उसको 3 फेज़ में किया जाएगा, 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अभी पंजाब में जो है हमारे डायरेक्टरेट में, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट में 2 एरिया हैं जहाँ पे बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सो उसमें हमें अभी तक जो है 16,500 एडिशनल वैकेंसीज़ मिली हैं और जिसमें 14,000 वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। सो बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन के तहत एडिशनल एक्सपेंशन प्लान्ड है और उस प्रकार किया जाएगा। सर, जो राष्ट्रीय एकता कैंप लग रहे हैं उसमें कोई एक्सपेंशन, कोई वृद्धि होगी? हमारे फ़ौज में नेशनल लेवल पे कई कैंप लगते हैं। रिपब्लिक डे परेड कैंप लगता है, उसके अलावा थल सेना कैंप लगता है, वायु सेना कैंप लगता है, उसके अलावा नौसेना कैंप लगता है। ये नेशनल लेवल पे, इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है और कई एडवेंचर कैंप्स हैं जो नेशनल लेवल पे लगते हैं। ये कैंप्स जो हैं एक बहुत प्लान्ड तरीके से हर साल ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिसमें हर एक डायरेक्टरेट के बच्चों को, हमारे जो देश में टोटल जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, हर एक स्टेट को, हर एक यूनियन टेरिटरी को जो है वैकेंसीज़ प्राप्त होती हैं और हमारे बच्चे इन कैंप्स के अंदर, जो नेशनल लेवल कैंप्स है, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहिए जो एनसीसी में संदेश? बच्चों को संदेश जो है वो यही है कि ये बच्चे हमारे देश के जो हैं सबसे अच्छे नागरिक हैं। इनको हम एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं और इन बच्चों ने हर फील्ड में, हर लेवल पे, हर जगह पे बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इन्होंने जो हमारे नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके अंदर हिस्सा लिया है और ये अगर आप इनको तुलना करें तो ये बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के बच्चे जो हैं ये उभर के आते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और देश के अच्छे नागरिक बनकर उभर के आएँ और देश की उन्नति में भाग लें। धन्यवाद। थैंक यू।